I'm going to start with our topic, statics. जो हमारे पास रेगुलरली वी आर doing from the last two sessions, and basically my today's topic is median. Okay, so we will discuss this one. Before I start with the formation, but one data is called ungrouped. I think आप सब जानते होंगे what is ungrouped data. Like if something is given to me कि here are some particular things 15, 18, 10 and 12, and here is their frequency is 10, 8, 3 and 7. Suppose that this kind of data is given to you. Now first thing which we are defining here is called cumulative frequency. क्या डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चे? Cumulative frequency. And what is cumulative frequency? Instead of this frequency, cumulative को बता क्या बोलते हैं हम? Accumulated. Suppose that ये पहला क्या हो गया 10 plus 8, here we got 18 plus 3 we got 21 plus 7 we got 28. This type of distribution is known as cumulative frequency, means including the previous one. Okay, इसको हम किसके साथ डिफाइन करते हैं? Cumulative frequency के साथ डिफाइन करते हैं. Now check my point. If I add these terms, it is again equal to 28. ठीक है, तो ये आपके पास फिर से किसके इक्वल होगा? 28 के इक्वल होगा when we are discussing this kind of structure. फिर से देख लीजिए 28 and this 28. तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है बच्चे, when we are finding median, तो we will discuss one thing which is known as cumulative frequency. तो ये आप सबको आनी चाहिए cumulative frequency. Cumulative frequency can be given to you in two ways. एक less than वाली फॉर्मेशन आएगी, एक किस वाली आएगी? more than वाली फॉर्मेशन है. जैसे अब मैं आता हूं cumulative frequency में, when the data is grouped data means if it is given to me class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and frequency is given to me like this one 2, 10, 25, 20 and 3. Now if I add all these frequencies, तो मेरे पास टोटल सम कितना हो रहा है बच्चे? 60 हो रहा है. Now check it how I'm getting the cumulative frequency. So what I'm saying here, to find out the cumulative frequency, my first target is write down 2, means to say 0 to 10 में कितने values हैं? 2 हैं. Now come on to my next point. 2 plus 10, it becomes 12. मैं इसको cumulative क्यों बोल रहा हूं बच्चे? I'm saying this as a cumulative because अब मेरे पास ये हो गया कि 20 से नीचे नीचे कितनी वैल्यूज होंगी? 12 वैल्यूज होंगी. Now 12 plus 25, it becomes 37. 37 plus 2, 57, and 57 plus 3, 60.
और ये हमारे पास क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, दिस वन। अब इसमें मैं ये बोलूंगा बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 10, तो मैं यहां से बता दूंगा कि लेस देन 10 में कितने स्टूडेंट है, 2। इफ somebody ask you लेस देन 20 में कितने हैं, तो आप बता देंगे 12। इफ somebody ask you लेस देन 30, तो आप बता देंगे टोटल कितने, 37। इफ somebody ask you लेस देन 40, तो आप बता देंगे कितने होंगे, 57। इफ somebody ask you लेस देन 50, तो आप बता देंगे टोटल कितने होंगे, 60 होंगे। दिस इज द नीड ऑफ आवर cumulative frequency. Got my point? अब दूसरा स्टेप देखिए, इसी में मेरे पास कई बार ना क्वेश्चन डाटा इस तरह का गिवन होता है। बिफोर आई स्टार्ट द मीडियन, मैं कुछ बेसिक्स कर रहा हूं बच्चे। समवेयर डाटा इज गिवन टू मी लाइक दिस वन, more than 0 is 60, more than 10 is 58। ठीक, ये मेरे को डाटा प्रोवाइडेड है बच्चे। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, सॉरी 58। नेक्स्ट, more than 20, 48, more than 30, 23, more than 40, 3। ओके, नाउ बड़ा सिंपल ऑर्डर है बच्चे, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं। नाउ आई एम चेंजिंग इट इनटू अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट आई कैन स्टार्ट, आई विल राइट द क्लास इंटरवल्स, and in this class interval, first of all I will check more than 0, so I can write this one as 0 to 10, more than 10, 10 to 20, more than 20, 20 to 30, more than 30, 30 to 40, and more than 40 means to say 40 to 50। now how we will prepare the topic, 6, देखो इसने कहा more than 0 10, sorry 60 and more than 58, तो that means बच्चे 0 to 10 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं, 2। 60 minus 58 बस। नेक्स्ट 10 to 20, 58 minus 48, 10। now next will come 48 minus 23 यानी 25। next 23 minus 3 means 20, and the last is this one, तो इसको हम कितने में बोलेंगे बच्चे, 3। तो this is the frequency which we can sort out। got my point? तो ये है बच्चे हमारे पास किसी एक स्टैंडर्डाइज पॉइंट से किसी भी फ्रीक्वेंसी को क्या करना, क्रिएट करना, सॉरी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को क्या करना, क्रिएट करना। एंड सी वन मोर एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल इज गिवन टू मी लाइक दिस वन। ये बच्चे सारे क्वेश्चंस में काम आएगी आप, ठीक है, किसी में भी ऐसा डाटा प्रोवाइड हो सकता है। लेस देन 5, नेक्स्ट less than 10, less than 15, less than 20, less than 25, less than 30. Okay, and data is given to me 4, 12, 20, 40, 50 and 54. ये मेरे को फ्रीक्वेंसी दी है। This is called cumulative frequency. Okay, now check it how I will create the question. So I will simply write it as class intervals. He said less than 5, so means to say 0 to 5. Less than 10 means to say 5 to 10. Less than 15, 10 to 15.
लेस देन 20, 15 to 20, less than 25, 20 to 25, and less than 30. This one. Now, how he said less than 5, तो यहां पे आ जाएगा 4. Now, reverse order में चलिए बच्चे. 12 minus 4. Here we got 8. 20 minus 12. Here we got again 8. Now 40 minus 20. 20. 50 minus 40. 10. And 54 minus 50. This is equal to 4. तो you can check that हमने क्या प्रिपेयर कर दिया बच्चे इसमें. Continuous frequency distribution of a certain data. Okay, क्वेश्चन कैसे चला? Just a 4, 12 minus 4 मीन्स टू से इसने कहा कि लेस देन 5 में कितने हैं? 4 हैं, तो हमने 4 रख दिए. अब उसने कहा लेस देन 10 कितने हैं? टोटल 12 है, तो 12 में से 4 तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो इसका मतलब इस क्लास इंटरवल्स में कितने बचे? 8. एंड वी कैन कैरी ऑन. अब उसके बाद आपके पास क्या फाइंड आउट करने का आएगा बच्चे? टू फाइंड आउट द मीडियन और मॉड. गॉट माई पॉइंट? अब चलिए मैं सीधा आपके पास आपको लेके आता हूं किस पे? मीडियन पे. नाउ व्हाट इज मीडियन? बच्चे अगर हम मीडियन को सिंपल डिफाइन करें तो दिस इज कॉल्ड द मिडिल टर्म, यानी ऐसी टर्म जो एक डाटा के किस में लाई करती है? मिड वैल्यूज में क्या करती है? लाई करती है. ओके, एंड हाउ वी विल चेक इट? सपोज कीजिए डाटा इज गिवन टू यू लाइक दिस वन, 2, 2, 5, 7, 11, 13, 14, 14, 16, 18 and 20. Suppose that somebody asked me find out the median. देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है कि whenever you will try to find out the median, arrange these terms either in increasing order or in decreasing order. तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लगी हुई है, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है. तो व्हाट आई कैन डू? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11. देखिए अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जाऊं तो आई विल से मैंने 5 टर्म इस तरफ से छोड़ दी, 5 टर्म्स इस तरफ से छोड़. व्हाट इज द मीडियन? 13. बस अगर आपको डाटा सिर्फ इसी फॉर्म में दिया. एंड हाउ आई विल चेक इट? मैं भी आपको फार्मूला बताऊंगा बच्चे. ठीक, नाउ सी इफ द टर्म इज लाइक दिस, तो व्हाट वी कैन डू? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज दीज टर्म्स. कैसे अरेंज करोगे? 3, 4, 5, 7, 8 and 10 and check it. How many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And if I can apply the same rule which I have done earlier, तो मेरे पास क्या होगा बच्चे? मैं ये 2 छोड़ दूंगा इस तरफ से, एंड इस तरफ से भी 2 छोड़ दूंगा. तो दैट मीन्स मेरे पास तो मिडल में 2 टर्म्स एप्लीकेबल है, 5 and 7. तो रूल ये है बच्चे कि व्हेन n इज ऑड, सुन लीजिए, n इज ऑड का मतलब जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? ऑड होंगी. तो यहां पे रूल लिखिए सिंगल मिडल टर्म. क्या होगा? आपके पास एक सिंगल मिडल टर्म होगी. एंड हाउ विल यू फाइंड दैट टर्म? उसका एक सिंपल सा रूल है, और वो रूल है n+1
divided by 2. अब सुनिए कैसे. Here are 11 terms. तो आपने उसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी थी. तो व्हाट आई हैव डन, 11 प्लस 1 किया, इट बिकम्स 12. उसको 2 से डिवाइड किया तो इट बिकम्स 6. तो मीन्स टू से सिक्स्थ नंबर टर्म इज द मीडियन. बस. नाउ इफ n इज इवन तो आप लिखेंगे 2 मिडल टर्म. अब हाउ आई विल चेक 2 मिडल टर्म, तो उसका एक सिंपल सा रूल, n/2 कर दीजिए और मैं इसको ऐसे लिखता हूं एंड नेक्स्ट. चेक कीजिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6. तो 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 3. यानी आपकी थर्ड नंबर टर्म एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म होगी. और इसका मीडियन कैसे निकलेगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुई तो दोनों मिडिल टर्म का एवरेज कर दीजिए बस. तो मीडियन इज 6. ये बच्चे आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं कि ये आपके क्वेश्चंस हैं. नाउ कम ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है बच्चे, सपोज दैट अनग्रुप्ड डाटा इज गिवन टू यू लाइक दिस. चेक कीजिए, हियर इज 20, 25, 35, 40 and 50, and frequency is given to you. This is x, this is f. Okay, now frequency is given to me 5, 11, 24, 16 and 5. इसको ध्यान से देखिएगा बच्चे, what I am going to do with this question. And इसका total sum कितना है, 61 है. Now can you tell me how many middle terms are here, 1 or 2? हाँ जी, anybody? 1. Sir, 1. 1. Okay, ठीक, 1. How we will check that middle term is 1? देखिए sum of terms यानी number of terms कितनी है, odd. कितनी है number of terms, odd है. And we will check that कि अगर वो odd है तो उसमें एक ही क्या होगी, mid value होगी. To find out the middle term, what we can do, we can start with cumulative frequency. तो हम cumulative frequency के साथ शुरू करें. तो my first number is 5, 5 plus 11, 16, 16 plus 24, 40, 40 plus 16, 56, 56 plus 5, 61. ओके, हो गया. नाउ हाउ वी विल चेक दैट, मैंने आपको कहा था कि आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 61 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट मींस जो इसमें 31st टर्म होगी दैट इज द मिडिल टर्म. कौन सी टर्म, 31st. तो बच्चे चेक कीजिए 31st टर्म कौन सी होगी. देखिए जो पहली 5 टर्म्स हैं दे आर 20, जो 6 से लेकर 16 तक हैं वो सारी की सारी टर्म क्या हो रही, 25. एंड चेक कीजिए, अब नोट करने वाली बात है बच्चे, 17 से देखो, 17 से लेकर जो 40 तक टर्म्स होंगी वो सारी की सारी टर्म्स कौन सी होंगी, 35. अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चे, अगर मैं इसको अनग्रुप्ड डाटा में लिखता 20 20 20 20, 5 टाइम आएगा. फिर क्या आएगा, जो 25 है वो कितने टाइम आ जाएगा, 11 टाइम आ जाएगा. फिर उसके बाद जो 35 है वो कितने टाइम आएगा, 24 टाइम आएगा. तो अगर मैं इसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करूंगा 31st, तो वो 35 में आ जाएगा. तो मैं यहां से बिना कोई डाउट किए ये बता देता हूं कि व्हाट इज द मीडियन इन दिस केस, 35. दैट्स ऑल. गॉट इट. ये किसके लिए है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए. लिसन मी केयरफुली.
फॉर अनग्रुप्ड डाटा। यस बच्चे, जल्दी से। सर जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था एक, हम्म जिसमें आपने मिडिल वो निकाला था, क्लास इंटरवल निकाला था, उसमें आपने एक में तो डायरेक्ट ले लिया था, और जैसे हमने ऊपर नीचे प्लस करके कर रहे हैं, बट एक में आपने स्टार्टिंग में ले लिया था, सेकंड में हम उसको डायरेक्ट ऊपर नीचे प्लस करके कर रहे थे, वो नहीं समझ में आया था। भी आप वो बिल्कुल। कैसे कर रहे हो, उसको कैसे बना रहे हो? एक बार फिर से देखना उसको, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं की बच्चे हमने, ठीक है। आप शायद लेट होंगे। ओके सर। कि सही Yes. टाइम पे ही थे। नहीं सर, मैंने क्लासेस दो लास्ट में लगाई नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। ओके, कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ, अभी करता हूँ उसको क्वेश्चन को। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अभी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चे आपके साथ, सेम टाइप का, ठीक है। तो चेक कीजिए, दिस इज गिवन टू मी। ये है बच्चे मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला अभी आपके पास। एंड दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो मार्क्स गिवन टू मी 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25. And here is the frequency: 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 and 20. बच्चे when you try to repeat this question, he said find out the median. ये बच्चे ungrouped data है, grouped data के लिए तो सीधा सीधा फार्मूला है। ओके, we are dealing with ungrouped data. ओके, तो चेक कीजिए how we will move on. तो for ungrouped data you will see in this particular questions कि देखिए पहली वैल्यू 20 है, फिर 29 है, फिर 28 है, 33 है, 42 है, 38 है, 43 है, बट एंड में क्या है, 25 है। तो आई कैन से कि ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ना क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दिस डाटा इन अरेंज्ड फॉर्म लाइक दिस। देखिए सबसे पहले कौन सी फिगर आएगी, 20, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, 25। तो 20 की वैल्यू बचे होगी 6 एंड 25 की वैल्यू क्या हुई, 20। तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज्ड में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट वन 29, 28, सॉरी 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 इसमें भी गड़बड़ होगी, 29 नहीं आएगा, अब क्या आना चाहिए, 28 आएगा बच्चे। चेक कीजिए 28 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 24, देन 29, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 28, देन 33, its frequency is 15, then 38, its frequency is 4, then 42, frequency is 2, then 43, its frequency is 1. तो ये बच्चे आपके पास मार्क्स obtained थे and this is the frequency and what he is expecting from us the median of this question. तो अब हम आते हैं मीडियन पे। तो फॉर मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट CF। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बड़े डिफिकल्ट मोड में लेके जा रहा हूं, बट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, मैं बता दूंगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन, बट ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब देखिए नाउ वी विल चेक इट, द सम ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी इज 100। राइट डाउन द cumulative frequency। देखिए cumulative frequency क्या आएगी, 6, next is 26, 50, 78, 93, 90, 7। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया बच्चे, 1 2 3 4, ये नीचे चल गया थोड़ा सा, तो इसको हम सेटल कर लेते हैं अभी।
तो here it will come as 78. 78 के बाद क्या आएगा? 93, 97, 99 and 100. Here is a question. अब आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं बच्चे. चलिए मैं आपको एक पोल दे रहा हूं बच्चे. According to this poll, what should be your answer? 28, B, 29, C, does not know. चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, देन आई विल टेल. हाँ, इसमें एक ऑप्शन और लगा लेते हैं, डी, एनी अदर, कुछ और आएगा. फिल इन द पोल. हाँ जी, पोल इज देयर, चेक कीजिए. बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि ये देखिए मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखता हूँ, 6 प्लस 20, 26, 26 प्लस 24, 50, 50 प्लस 28, 78, 78 प्लस 15, 93, 93 प्लस 4, 97, 97 प्लस 2, 99, and 99 plus 1, 100. This is the way to write the cumulative frequency. ओके, चलिए अब देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर. चेक कर लीजिए, पूरा इंडिया 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. चेक कीजिए, उन्होंने ये कर दिया कि हम ए के साथ जाएंगे, कुछ ने कह दिया बी के साथ, किसी ने सी के साथ, किसी ने डी के साथ. चेक माय आंसर. देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 100 है. मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? इवन होगी. ओके बच्चे, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपको बताती है कि कौन सी टर्म किस नंबर पे पड़ी है. जैसे जो फर्स्ट 6 टर्म्स होंगी वो 20 होंगी. 26 ये बताती है कि 6 से लेकर 26 तक, यानी 6 से ऊपर 7 से लेकर 26 तक ये 25 रिपीट करें. दिस इज द यूज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब आइए 100. तो मैंने आपको कहा था हाउ यू विल चेक द टर्म्स. इसमें हमारे पास जो टर्म्स आती हैं बच्चे, हम सीधा सीधा 100 को 2 से डिवाइड करते हैं. तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब आपकी 2 मिडिल टर्म्स होंगी, एक 50 और एक 51, एक 50th नंबर और एक 51. और इस क्वेश्चन में नोटिस कीजिए, आपकी जो 50th नंबर टर्म है वो है 28, बट आपकी जो 51 नंबर टर्म है वो है बच्चे 29. नोट किया जाए इसको. तो 50th टर्म आपकी है 28, बट 51th नंबर टर्म है 29. और मैंने ये कहा था कि इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, फाइंड आउट द एवरेज. तो आप इन दोनों की एवरेज फाइंड आउट करेंगे. तो इनकी एवरेज जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट अ न्यू आंसर विच इज 28.5. और मैं ये आपको कहीं से नहीं दिखा रहा, इट्स दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक. अब जल्दी से 278 पेज ओपन कर लो, और कल को अगर एग्जाम में आ जाता तो 29 लगाया. 278 पेज ऑफ योर बुक एंड 279. आई नो दैट आप सब ने क्या कर लिया होगा, फाइंड आउट कर लिया होगा कि हाउ वी विल मैनेज इट.
278 पेज। सर 51 टर्म कैसे आई, मतलब 50,51 कैसे आया? ये बच्चे देखो, ये होती है टर्म की सीक्वेंस कि जो 50th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 28 है। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही तो हमें बताती है। अब देखो, उसके बाद 51 से लेकर 78 तक जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 29 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब 50th टर्म की वैल्यू 28 थी, जैसे हम एपी में नहीं करते थे, और 51th नंबर टर्म की वैल्यू क्या होगी, 29 होगी। तो हमने टर्म की वैल्यू को ही क्या करना होता है, एवरेज करना होता है ना। यस सर। तो दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट। अच्छा, अगर किसी को ना ये चीज समझ नहीं लगी कि ये मैं कैसे कर रहा हूं, तो एक चीज देखिए, सपोज कीजिए मैंने ये लिखा 1 1 2 2 2 3 3 5 6 6। चलिए मैं इसको लिखता हूं। अब मैं इसको ना फ्रीक्वेंसी में बनाता हूं। ये आपके पास 1 है, 1 कितने बार आ रहा है, चेक कीजिए। 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो ये इसकी होगी फ्रीक्वेंसी। 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। 5 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। एंड 6 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। इसको हम बोलते हैं, हमने इसको ग्रुपिंग में कर लिया। अब फाइंड आउट इट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8 एंड 8 प्लस 2 10। और ये भी आपके पास क्या होगा, 10 होगा। अब आप चेक कीजिए, व्हेन यू विल फाइंड मिडिल टर्म, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन यू फाइंड आउट मिडिल टर्म, तो इसमें 2 मिड टर्म होंगी बच्चे, एक तो 5th नंबर टर्म और एक 6th नंबर टर्म। अब कैसे पता करूंगा मैं, देखिए मैंने यहां से छोड़ दिए 4 और इधर से भी 4 टर्म छोड़ दी। इसका मतलब मेरी एक मिडिल टर्म की वैल्यू 2 है और दूसरी मिडिल टर्म की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आई विल फाइंड द एवरेज। तो मैं जब इसकी एवरेज फाइंड आउट करूंगा तो एवरेज कितनी बनेगी, 2.5, दैट इज माय मीडियन। अब मैं इसको इस तरह से ना करके टेबल में देख रहा हूं। देखिए 5th टर्म, ये रही 5th टर्म, 5th टर्म की वैल्यू क्या है, 2। नाउ 6th टर्म, 6th टर्म मींस 6th और 7th दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो मेरे को तो जस्ट 6th चाहिए, ठीक। तो व्हाट वी विल डू, 2 प्लस 3 को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, डिवाइडेड बाय 2, तो इट बिकम्स 2.5। इसको ध्यान में रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। अब मैं आपको सीधा मीडियन के क्वेश्चंस पे लेके आता हूं। आप सोच रहे होंगे सर क्या करवाने लगे, हमने तो कभी किया नहीं ऐसा, बट दिस इज द रियल टाइप ऑफ मीडियन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। बट एनी हाउ, अब हम आते हैं बच्चे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में लेके आता हूं, हाउ वी विल फाइंड द मीडियन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and here is my answer, frequency. Frequency is 8, 20, 36, 24 and 12, and overall sum is 100. And he is asking me find out the median of this questions. So now I'm going to start with ये class intervals था, तो now I'm starting with cumulative frequency. तो cumulative frequency हुई बचे 8, 8 plus 20, 28, 28 plus 36, 64, 64 plus this 88, and 88 plus 12, 100. ओके, अब फिर से देखिए 100 वाला क्वेश्चन आ गया। नाउ इन दिस केस आई विल डिसाइड द मिडिल टर्म्स। तो आपको पता है मिडिल टर्म कौन सी होंगी, 50th एंड 51।
बट फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में 29 से लेकर 64 तक जो टर्म्स हैं वो 20 और 30 के बीच में लाई करती है। तो मैं इस पूरी क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि 50th नंबर टर्म भी यही है एंड 51th नंबर टर्म भी क्या है, यही है। दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? मीडियन क्लास। इसको आपने नोटिस कर लेना है, बिकॉज 50th टर्म एंड 51th टर्म इसमें लाई करती है। और एक चीज आपको और इंश्योर कर रहा हूं कि जो आपके पास मीडियन की वैल्यू होगी इट विल लाई बिटवीन 20 एंड 30। एंड हाउ वी विल चेक इट? फॉर दिस वी विल utilize one formula which is known as L n by 2 minus CF over F into H। वो फार्मूला क्या है? व्हाट इज L? L होता है बच्चे द लोअर लिमिट ऑफ द सिलेक्टेड क्लास, यानी इसमें L की वैल्यू क्या होगी? 20। नेक्स्ट, व्हाट इज N? फ्रीक्वेंसी divided by 2, it is 50। next, CF means cumulative frequency of the preceding class, यानी जो आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट की थी उससे पहले वाले की क्या थी? cumulative frequency क्या है? 28 divided by frequency of the median class, that is 36। and at the last, what is the value of H? In this case 0 10 10 20 20 30, this is equal to 10। और मेरे को बच्चे आगे बताने की जरूरत नहीं है कि what you can do there, just find out the median। बट मैं एक चीज आपसे इंटरेस्टिंगली कहना चाहता हूं कि देखिए यहां पे हमने H की वैल्यू 10 ली। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये वाला मेथड क्यों करवाया? इसका भी एक रीजन है। चेक माय पॉइंट। सपोज दैट आपके जो ये क्लास इंटरवल्स हैं ये यूनिफॉर्म ना हो, यानी यहाँ पे 0 से 10, फिर 10 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 48 हो, तो आप H की वैल्यू तो यूनिफॉर्मली नहीं ले पाएंगे। सपोज करो ऐसा कुछ हो गया 0 to 10, 10 to 18, मैं ये एग्जांपल से ही ले रहा हूं, 18 से 22, and here is frequency 2 3 and 5। then what we can do? इस केस में तो हम फार्मूला नहीं लगा पाएंगे बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म। ये x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? मीडियन कितना हो गया? 5। इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? 9। इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? 19। और इसके बाद इसकी लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी 2 3 5, और इसको उस मेथड से करूंगा जो मैं अभी आपके साथ सॉल्व करके आया। ओके हाँ, इफ एवरीथिंग इज फाइन कि क्लास इंटरवल्स हैं, आपकी बुक में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो फिर आप इस फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे एंड फाइंड आउट द मीडियन। गॉट माय पॉइंट? अब इसमें एक चीज और आ जाइए, वन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ऑल दैट, वो ये होता है बच्चे 3 मीडियन। इसको याद रखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। मीन्स टू से, अगर आपको एक सिंगल डाटा प्रोवाइड किया जाए एंड ही विल आस्क यू फाइंड आउट मॉड, मीन एंड मीडियन, सिंगल क्वेश्चन, तो आप एनी 2 थिंग्स को फाइंड आउट कर लीजिएगा बच्चे, फिल इन दिस रिलेशन एंड यू विल गेट द थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड मीडियन और मीन और मॉड। तो इस रिलेशन को फॉर नॉलेज से आपने क्या रखना है? याद रखना है। और दिस इज समथिंग अबाउट मीडियन। नेक्स्ट क्लास में हम
इसको नेक्स्ट फॉर्मेशन में क्या करेंगे या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे when we will do some more questions of median. अभी मीडियन खत्म नहीं हुआ बच्चे, हम मीडियन के कुछ और क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। एंड इसके अलावा हम मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे मीडियन एंड मीन एंड मॉड के। ओके, so that's something about median. Now your queries.